Good morning, Apurum family. Apurum India की तरफ से we wanna wish you a very very happy Christmas week. You know, पूरी दुनिया इस हफ्ते क्रिसमस की तैयारी में लगी हुई है and the whole world is getting ready to celebrate the birth of our Lord and Savior. You know, Josh, हम सबको पता है कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह आखिर इस धरती पर आया क्यों। इसी विषय के बारे में आज पास्टर जोशुआ डेविड हमें और गहराई में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम पिता परमेश्वर की आराधना करें। गुड मॉर्निंग चर्च, यीशु मसीह के नाम में आप सबका फिर से आज स्वागत है। अब हम क्रिसमस के बहुत करीब है और आज का जो कैरल है वो कहता है जॉय टू द वर्ल्ड। यीशु मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं आया, लेकिन सारे संसार के लिए आया। He came for you। आज आप शायद कहीं से भी हमें देख रहे हो, no matter where you come from, who you are, whether you know Jesus or not, but Jesus came for you। Hallelujah। और ये जो कैरल हम गाते हैं, joy to the world, the Lord has come, let earth receive her king। हमारी प्रार्थना है कि आज आप इस संसार के राजा को पहचान लें, यीशु मसीह जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर और कोई नाम नहीं। वचन कहता है कि the name of Jesus is higher than any other name, and at the name of Jesus every knee will bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord। Hallelujah। And we pray that as we worship today, that this revelation would grip your hearts। Hallelujah। Amen। Come on, let's rejoice। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and hallelujah. Join with the angels to surround the throne of God. With all creation, we cry out, joy to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Joy to the world, the Savior reigns. Let men the songs implore. White fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, far as the curse is found, far as the curse is found, far as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We're gonna sing this again. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love। Hallelujah। Come on, ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। Thank you Jesus, we worship you। यीशु मसीह हमारे बीच में आया, हमारे बीच में चला।
जो कुछ आज आप और मैं जिन बातों से हम गुजरते हैं, हर बात से वो गुजरा, but he was without sin. Hallelujah. That's why he is called Emmanuel, who was so close with us. Hallelujah. Amen. We worship you, Lord. Thank you, Lord. He walked where I walked. He walked where I walked. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I feel. He understands. He understands. He knows my frailty. He knows my He frailty. shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. Yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, whoa, whoa. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One of a hated race, One of the hated race. sung by the prejudice, Stung by the prejudice. suffering injustice. Suffering injustice. Yet he forgave. Yet he forgave. Wept for my wasted years. Went for my wasted He years. paid for my wickedness. Paid for my wickedness. He died in my place, He died in my place. that I might live, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, whoa, whoa. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One of a hated race. He's one of a hated race. One of the hated He race. was stung by the prejudice, Stung by the prejudice. suffering injustice. Suffering injustice. Yet he forgave. Yes, he He forgave. wept for my wasted years. Wept for my wasted He years. paid for my wickedness. Paid for my And wickedness. he died in my place, He died in my place. that I might live. That I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, whoa, whoa. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Sing God with us. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Whoa, whoa, whoa. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. Jesus, Jesus, so close. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Oh, we call on the name of Jesus, who is so close to us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you that you are so close with us. Thank you, Jesus. You are the Ancient of Days. Hallelujah. We give you all the blessing and honor and glory and power. Hallelujah. You know, Jesus was before the creation. Before anything was created, He existed. Hallelujah. He is the Ancient of Days. And He is there with us right now wherever we are.
आज आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। Thank you, Jesus. We give you all the blessing, honor, and glory and power. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. every tongue. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. We're gonna give blessing and honor. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. from every nation. From every nation, call of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue, Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. oh Ancient of Days, your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing it to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing it to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. We sing, Sing it to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. that we sing, Sing it to the Ancient of Days. yeah. Your kingdom shall reign over all the earth. Oh, Sing it to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing it to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. every tongue in heaven and earth Shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. Hallelujah. We sing to the Ancient of Days. Thank you, Lord. Oh, Ancient of Days. Hallelujah. Oh, hallelujah. The King above all, the Lord above all, Jesus.
Salvation belongs to you. Glory and honor and power belong to you. Oh, सारी महिमा, सारा वो तुझको मिले. Oh, thank you, Jesus. पूरा आदर और महिमा उसे दे. Hallelujah. Because He is worthy of all praise. Great and mighty is the Lord of Lords. His name is Jesus. Thank you, Lord. Worship you. Thank you. Great is He who's the King of kings and the Lord of lords. He is wonderful. Sing it again. Great is He who's the King of kings and the Lord of lords. He is wonderful. All the ladies cry. One more time. Lift up your voice and great is He. Great is He who's the King of kings and the Lord of lords. He is wonderful. Great is He who's the King of kings and the Lord of lords. He is wonderful. Ladies cry. All the ladies that are joined in worship, join it again. And all the guys there, let's sing this. Hallelujah, salvation and glory, honor and power. He is wonderful. One more time. Hallelujah, salvation.
God today. हर आंख यीशु पर लगी रहे, हर हाथ यीशु की ओर बढ़ाए, हर हृदय को उसकी ओर बढ़ाए। Thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory. My God, you're an awesome God, you reign from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome God. My God, tell it to him, everybody. अपने हाथ यीशु की ओर उठाएं और कहें, from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome. My God, my God, you're an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome. My God, my God, my God, you're an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome God. My God, my God, my God, you're an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome God. My God, you're an awesome God. You reign from heaven above with wisdom, power, and love. My God, you're an awesome God. 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 Oh Lord, you're an awesome God. My Lord, you're an awesome God. Full of wisdom and power and love, full of strength. Jesus, you are a wonder-working God, my way maker, my King, oh Jesus. Come on, cry out to him. Who is Jesus to you today? सारी महिमा और आदर के योग्य है केवल तू यीशु। Thank you. सारी महिमा उसे दे, सारा आदर उसे दे। Thank you, Jesus. आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, 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 आदर
तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले आदर और महिमा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा, आदर और महिमा, स्तुति प्रशंसा तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले, तुझको मिले। We give you glory. यीशु मसीह की उपस्थिति में ठहरे रहे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। Thank you, Jesus. सारी प्रशंसा तुझको। Give it all to Him. Give it all to Him. Thank you, Lord. स्तुति प्रशंसा, स्तुति Thank you, Jesus. केवल तुझको मिले प्रभु, केवल तुझको मिले प्रभु। Luke 6:38. Give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use it, will be measured back to you. जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे उस बच्चे की कहानी याद आती है जब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, पर उधर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा किया। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि ऑफरिंग का समय एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे आज की ज़रूरत को नहीं पर हमारे फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला है। So today, as you so believe and trust that God will not only provide for your present needs but also for the future needs. Let me pray for you. Father God, we thank you for this time. Lord, I pray that as people purpose in their heart to sow, may they trust you with everything that they give unto you, Lord God. I give their lives and everything into your hands, Father God. Reward them for everything that they do for you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई, माफ तूने किया, हमको दीना सजा, हमको दे दी
पाप हमने किया, प्यार तूने किया। पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा, हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा। के पाप हमने किया, प्यार तूने किया। रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा, हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा। के पाप हमने किया, प्यार तूने किया। रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। मृत्युंजय लेने आएगा, उसके संग जाएंगे ऊपर। जिसने जय पाई मानव पर, जय पाएंगे उस मृत्यु पर। मृत्युंजय लेने आएगा, उसके संग जाएंगे ऊपर। जिसने जय पाई मानव पर, जय पाएंगे उस मृत्यु पर। हम गुनहगार थे फिर भी हमको चुना, हम गुनहगार थे फिर भी हमको चुना। के पाप हमने किया, प्यार तूने किया। रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा, हमको दी ना सजा, हमको दे दी शिफा। के पाप हमने किया, प्यार तूने किया। रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। अब तो पिता
अंधियारे को दूर भगा दे अपनी ज्योति की किरणों से। अब तो पिता हम अपना समर्पण करते हैं तेरे चरणों में। अंधियारे को दूर भगा दे अपनी ज्योति की किरणों से। अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा ले, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला ले, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला। जिंदगी तेरे हाथ है, तेरी महिमा की क्या बात है। अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा ले, अब तू चाहे उठा, अब तू चाहे गिरा ले, अब तू चाहे हंसा, अब तू चाहे रुला ले, अब तू चाहे हंसा ले, अब तू चाहे रुला। जिंदगी तेरे हाथ है, तेरी महिमा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। हमको दीना सजा, हमको दे दे शिफा, हमको दीना सजा, हमको दे दे शिफा के पाप हमने किया, प्यार तूने किया रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। हो अब तो सर को उठा के कहेंगे ये हम, अब तो सर को उठा के कहेंगे ये हम के पाप हमने किया, प्यार तूने किया रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। जिंदगी तेरे हाथ है, तेरी महिमा की क्या बात है। कैसी गहरी मोहब्बत तेरी है खुदा, भूल हमसे हुई माफ तूने किया। हमको दीना सजा, हमको दे दे शिफा, हमको दीना सजा, हमको दे दे शिफा के पाप हमने किया, प्यार तूने किया रे पाप हमने किया, प्यार तूने किया। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। महिमा की क्या बात है, तेरी महिमा की क्या बात है। फिर एक बार क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ आप में से हर एक को। आई बिलीव दैट ये सीजन आप एंजॉय कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ स्वीट्स टू ईट। इंडीड क्रिसमस हमारे जीवन में एक अनोखी खुशियों से हमको भर देता है। हर वर्ष मेरे लिए ये वो समय होता है जब मैं परमेश्वर की भलाइयों को, उसके उपकारों को अपने जीवन के लिए स्मरण करता हूँ। एवरी ईयर बाय दिस टाइम ऑफ द ईयर मैं एकांत में समय निकालता हूँ और बैठता हूँ और परमेश्वर के असंख्य उपकारों को जो इस वर्ष परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए उसको स्मरण करता हूँ, उसके भलाइयों को स्मरण करता हूँ। और ये स्मरण करना मेरे जीवन में एक हैबिट बनते चले जा रही है। व्हाट इट एक्चुअली डू, इट मेक्स मी अ मैन ऑफ थैंक्सगिविंग। मुझे एक धन्यवादी हृदय ये स्मरण करना दिला देता है। कई बार लोग बैठकर उन बातों को स्मरण करते हैं जो उनके जीवन में अच्छा नहीं हुआ,
और उन बातों के स्मरण के कारण उनके जीवन में बड़ा दुख आ जाता, बड़ा संकट आ जाता, बड़ा पेन आ जाता। लेकिन क्रिसमस उन बातों को स्मरण करने का समय है जबकि हम परमेश्वर की भलाइयों में अपने अपने मन को केंद्रित करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ क्या किया उसको स्मरण करने का टाइम है। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन। दाऊद अपने आप से ये कहता है पवित्र बाइबल में, ये कहता है, हे मेरे मन, तू परमेश्वर के किसी भी उपकार को मत भूलना, उसके असंख्य उपकारों को स्मरण रखना। Isn't it a beautiful habit to cultivate, my friend, कि हम परमेश्वर के उन उपकारों को अपने जीवन में स्मरण करें। सो ये वीक जब आप पॉन्डर करते हैं, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन फॉर योर लाइफ, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन, वो तमाम भलाई बातों को आप स्मरण करें। और याद रखें, जब आप परमेश्वर की उन उपकारों को स्मरण करते हैं तो दूसरों के लिए भलाई करना ना भूलें। दिस इज अ सीजन ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, दिस इज अ सीजन ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, अनजाने लोगों की मदद करना, बहुत सारे लोगों की मेहमान नवाजी करना या आवश्यकता में किसी की मदद करना। दिस इज अ सीजन फॉर दैट। As a Christian, we should celebrate this. ये वर्ल्ड क्रिश्चियंस की ओर देखता है इस क्रिसमस वीक में। मैंने देखा है लोग चर्चेस में आते हैं, वो जो साल भर कभी चर्च नहीं आते, वो क्रिसमस में ज़रूर चर्च आते हैं देखने के लिए। आई थिंक इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि ऐसे समय में जब लोग आते हैं गिरजाघरों में, कलीसियाओं में, ऐसे समय में लोग परमेश्वर के प्रेम का अपने अपने अनुभव को करने पाए। माई प्रेयर इज अपरों का हर एक विश्वासी परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करने वाला व्यक्ति बन जाए। माय फ्रेंड्स, आज जो वचन मेरे दिल में है आपके साथ बांटने के लिए, वो क्रिसमस के इस महोत्सव को लेकर ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस का रियल मीनिंग क्या है, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए। इन बातों पर मैं आपके साथ मिलकर आज वचन में ध्यान देना चाहता हूं। Let me introduce you to one verse. यूहन्ना इसके 4 अध्याय के 10वें वचन में यीशु मसीह एक महिला से बात कर रहे हैं। यूहन्ना इसके 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरिया नाम के गांव से गए। उन दिनों की ये बात है जब सामरिया जो है वो अछूत जाति में गिनी जाती थी और यहूदी अपने आप को बड़े ऊंचे मानते थे। यहूदी और सामरियों के बीच में कोई तालमेल हुआ नहीं करता था। वे एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ आते जाते नहीं थे। यहूदी लोग सामरी लोगों को कुत्ता समझा करते थे, कुत्ते से भी बदतर समझा करते थे। ये उन दिनों की बात है। ऐसे समय में जब जातिवाद इतना ज्यादा था, जब ऊंच नीच इतना ज्यादा था, जब कास्टिज्म इतना ज्यादा था, देयर केम अ मैन फ्रॉम हेवन हु चेंज्ड एवरीथिंग। वो स्वर्ग से नीचे उतर आया और जब वो आया तो उस दिन वो सामरिया में इस स्त्री से मुलाकात करने के लिए गया। उन दिनों में लोग स्त्री को नीचे समझते थे। पुरुष वर्ग सोसाइटी हुआ करती थी और वो स्त्री को अपने बराबर नहीं समझते थे, खासकर ऐसी स्त्री जिसका जीवन अच्छा ना हो। ये सामरी स्त्री जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं यूहन्ना 4 अध्याय में, इसका जीवन अच्छा नहीं था। इसके 5 पति हो चुके थे और छठवां जिसके साथ वो रहती थी वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। मेरे प्यारों, लिव इन रिलेशनशिप ये आज का मॉडर्न जमाने का नतीजा नहीं है। ये 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के दिनों में सामरिया के गांव में हो रहा था और तब वहां पर यीशु मसीह गया और इस महिला के साथ एक मुलाकात यीशु मसीह की इसके पूरे जीवन की गड़बड़ियों को सॉल्व कर दी। यू नो व्हाई? बिकॉज जीसस इंट्रोड्यूस्ड दिस वुमन टू एन अनयूजुअल गिफ्ट। एक अलौकिक गिफ्ट से यीशु मसीह ने इसकी मुलाकात कराई। यूहन्ना इसके 4 अध्याय के 10वें वचन में बाइबल कहती है, जब यीशु सामरी स्त्री से बात कर रहा था तो यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है तो तू उससे कहती कि जीवन का जल दे और वो तुझे जीवन का जल देता। वहां पहली बार यीशु मसीह ने अपने आप के विषय में ये कहा कि वो परमेश्वर का वरदान है, कि वो परमेश्वर का गिफ्ट है, दैट ही इज द गिफ्ट ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संसार जो खुशियां मना रहा है, ये उस चीज की खुशी मना रहा है वेयर गॉड गेव अ गिफ्ट टू द मैन, जहां परमेश्वर ने इंसानों को एक वरदान दिया है और वो वरदान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आज जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं ये वरदान हमारे जीवन में क्या करता है, प्रभु यीशु हमारे जीवन में क्या करता है, यीशु इस संसार में क्यों आया। लोगों के पास अलग अलग कारण है यीशु इस संसार में क्यों आया।
ओ पीपल थिंक दे ही केम टू स्टार्ट अ रिलीजन. कुछ लोग कहते हैं कि वेल यीशु मसीह आया, वो क्रिश्चियनिटी को इस्टेब्लिश करने आया, उसने एक नया धर्म बना दिया. कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था, अच्छा टीचर था, अच्छी चीजें सिखाने आया. लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं. कोई कहते हैं वो प्रॉफिट था, ही केम एज अ प्रोफेटिक फुलफिलमेंट. लेकिन आज यीशु मसीह के शब्दों में देखेंगे यीशु इस संसार में क्यों आए. पहली बात, लूका इसके 19 अध्याय के 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने खुद के विषय में कहा. उसने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया. नंबर वन थिंग दैट जीसस डिक्लेयर्स अबाउट हिज कमिंग इज ही हैज कम टू सीक एंड सेव दैट व्हिच इज लॉस्ट. वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया. जब मैं सोचने लगा परमेश्वर के वचन से ये बात, वाओ, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने आया, तो मैं सोचने लगा कौन था खोया हुआ. जब हम उत्पत्ति की किताब इसके पहले अध्याय में पढ़ते तो परमेश्वर ने सारी बातें खूबसूरत बनाई और अंत में हम देखते उसके 26 वचन में परमेश्वर ने अपने डिजायर को प्रकट किया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए. फिर आगे हम देखते परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला लिया, उसमें अपने नथनों से श्वास डाल दिया, वो एक जीवित व्यक्ति बन गया और उसे परमेश्वर ने आदम का नाम दिया, आदम यानी कि पहला पुरुष. फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसको एक पत्नी दी, उसकी फसली निकाला, उसके द्वारा उसके लिए एक स्त्री बना दी, उनके विवाह को कर दिया, उन दोनों को आशीष दी और वे फूले फले और पृथ्वी भर में फैल गए. That was a great blessing. God created man so that he can have fellowship with him. परमेश्वर का एक सबसे प्रिय ऐसा कोई वस्तु थी तो वो इंसान था. जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, आई बिगिन टू रियलाइज वन थिंग. उत्पत्ति के पहले अध्याय में यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी. जब परमेश्वर ने सूर्य चांद सितारे बनाए, he didn't move from his throne. वो बोला और हो गया. जब उसने हर प्रकार के वनस्पति बनाए, पेड़ पौधे बनाए, he didn't move from his throne. उसने बोला और हो गया. जब उसने जल में मछलियां बनाई, वो अपने सिंहासन से नहीं हला, उसने मुंह से शब्द बोला और हो गया. Everything that God created, it happened. God spoke it into being. जब उसने स्वर्गदूतों को भी बनाया, there is no record in the Bible that God moved in doing something like that. परमेश्वर बोलता गया और स्वर्गों का स्थापना हो गई, पृथ्वी की स्थापना हो गई. इसलिए उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले वचन में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस, स्वर्गों को बनाया और पृथ्वी को बनाया. थिंक विथ मी, ये सब कुछ बनाते समय ही डिडंट हैव टू मूव फ्रॉम हिज थ्रोन. लेकिन सोच के देखो, एक दिन ऐसा आया, परमेश्वर अपने सिंहासन से उठा. मैं कल्पना करता हूं कि पूरे स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत देखकर चकित रह गए. आज परमेश्वर पिता को क्या हुआ? वो अपने सिंहासन से खड़ा हो गया. एंड देन ही बिगिंस टू मूव एंड दे बिगिन टू लुक, कहां जा रहा है परमेश्वर पिता? ओ वो पृथ्वी पे आता है. दे ऑल मूव कि परमेश्वर एक प्लैनेट में आया, पृथ्वी पे आया. देन सबसे अचंभ की बात उन्होंने देखी, दे सी गॉड द फादर बाउइंग डाउन, घुटनों पे आते हुए देखा. आज तक कभी क्रिएशन ने परमेश्वर को घुटनों पे आते नहीं देखा, पर उस दिन वो परमेश्वर बाप घुटने पे आया, अपने हाथों को मिट्टी में डाला और मिट्टी में अपने हाथों को डालकर मिट्टी में गंदा कर रहा अपने हाथों को. एंड एवरीबडी इज वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू दिस होली गॉड. ये पवित्र परमेश्वर को क्या हुआ? ये सिंहासन से नीचे उतराकर घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को अपने हाथ में ले रहा, क्या कर रहा? एवरीबडी इज वॉचिंग. पूरी सृष्टि देख रही, ओ आकाश मंडल देख रहा, स्वर्गदूत देख रहे, एवरी क्रिएशन इज वॉचिंग गॉड. वो अपने हाथों से मिट्टी का पुतला बना रहा. Wow, look at the involvement that God had while creating mankind. इंसान को बनाते समय परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट देखो. वो अलौकिक हाथों के स्पर्श से इंसान बन रहा है. मैं कभी कभी देखता हूं अपने स्किन को, जब मैं देखता हूं अपने स्किन को तो मुझे ऐसा नजर आता है जैसे मानो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स इस पर हो. We don't know whether they are fingerprints of God. लेकिन मुझे ऐसा लगता है God touched us while we were making. भजन संहिता 139 में बाइबल ये कहती है, जब मैं अपने माता के गर्भ में रचा जा रहा था, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देख लिया. Oh God, you saw me when I was being formed in my mother's womb. मेरे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया. सोचो, परमेश्वर इन्वॉल्व था इंसान को बनाते समय.
He came down, अपने हाथों को मिट्टी पे डाला, घुटनों पर हो गया। सोच के देखो, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको झुकाने की ताकत किसी में नहीं, उसकी मोहब्बत ने उसे घुटने पर ला दिया, घुटने पर लाकर झुका रहा, नीचे झुककर मिट्टी में कुछ बना रहा। ये बनाने वाले के प्यार का प्रदर्शन है। इमेजिन विथ मी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, क्रिएटर ऑन हिज नीज वर्किंग विथ द मड। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के साथ काम करता है, मटमैला होता है, ओ वो सृष्टि करता मिट्टी के साथ काम कर रहा है। और काम करते करते जब मिट्टी का पुतला बन गया, आई कैन इमेजिन द जॉय इन हिज हार्ट। तब उसके नथनों में झुककर पहली बार यदि परमेश्वर कभी झुका है, वो आपकी और मेरी सृष्टि के दिन झुका है। He bowed down to the level of mud। उस नथनों में अपने मुंह को रखकर उसमें जीवन का श्वास को फूंक दिया। वो बनाने वाला अपनी आत्मा को उंडेल दिया, वो उसने जीवन के ब्रेथ को डाल दिया, और मिट्टी का पुतला एक जीवित इंसान बनकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। Imagine the joy of heaven। Imagine God, wow, a new masterpiece is standing before God। ओह, वो दिखने में खूबसूरत बेदाग झुर्री रहित उसके सामने भरपूर जवानी में खड़ा है। Why? God created him with his own hands। ओ बाकी सारी बातें मेरे परमेश्वर ने बोलकर रचा, केवल इंसान को अपने हाथों से बनाया। He was involved, he was committed, he gave his time, he gave his breath, और इंसान को बनाया। ये था जो परमेश्वर का अपना था, ये था जिसके साथ परमेश्वर इमोशनली अटैच था, ये वो था जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, जिसके अंदर उसने अपनी सांसों को समाया था। ये इंसान वो था जो परमेश्वर की आंखों की पुतली है, ये वो इंसान है जिससे परमेश्वर बेपनाह मोहब्बत करता है। He is someone that God delights in। इसलिए वचन कहता है, ओ परमेश्वर का सुख मनुष्य की संतान में है। His delight is in the children of man। सोच के देखो, ऐसा प्रेम में परमेश्वर ने अपने लिए कुछ बनाया। He fell in love with it। God fell in love with mankind। और रोज परमेश्वर इनसे मिलने आता, अदन के बगीचे में इनको रखा, रोज इनसे मिलने आता। जब मैं बाइबल में पढ़ता, परमेश्वर रोज इनसे मिलने आता। That tells me one thing, God had a need where he had to come to meet this man। परमेश्वर इस व्यक्ति से मिलने के लिए रोज आता, रोज दिन के ठंडे में परमेश्वर इससे मिलता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दिल इस व्यक्ति के बगैर तन्हा था, परमेश्वर का दिल इस व्यक्ति के बगैर अकेला था, इसलिए परमेश्वर इससे रोज मिलने आता। और बहुत परमेश्वर इससे प्यार करता, और प्यार हमेशा जिससे आप करते हो उसके बगैर सुनसान महसूस करते हो, उसके बगैर तन्हाई को महसूस करते हो। जिससे आप प्यार करते हो उसी की संगति में आपको मजा आता, इसलिए उठ चुट उसकी संगति में टाइम बिताना चाहते हो। दीवाने आप एक दूसरे के हो जाते हो। ओ परमेश्वर इंसान का दीवाना है, इसीलिए वो रोज इंसान को मिलने आता था, रोज उसके साथ बात करता था, उसके लिए भरपूरी रखा था, उसको अधिकार दिया था, सारी बातें उसके अधिकार के तले कर दी थी। He was God's masterpiece, he was God's own। ओ स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं था जो इंसान के लिए नहीं था। Everything God created was for this man। पर एक दिन इस इंसान ने अपना मुंह इस परमेश्वर के विरोध कर दिया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जब परमेश्वर के विरोध पाप किया, जब परमेश्वर को त्याग दिया अपने आप की मनसा के अनुसार, वो परमेश्वर को त्याग दिया और अपनी मन मर्जी करने लग गया। एक दिन उसने परमेश्वर के लिए अपने दरवाजे को बंद कर दिया। एंड दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड इन हिज लाइफ। It was a time of separation। और मुझे दिखाई देता है बाप का दिल टूट गया। ओ यीशु मसीह ने बाप के दिल में उत्पत्ति पहले अध्याय में क्या हुआ उस बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया। उसने उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताई। उसने कहा, एक धनी बाप था जिसके 2 बेटे थे, और एक दिन छोटा बेटा आया और बंटवारे का हिस्सा लिया और बाप को छोड़कर चला गया।
वो बाप के दिल पे क्या बीती वो सिर्फ बाप ही को पता है। जब उसके बच्चे उसे छोड़कर निकल गए, वो बाप के दिल पे क्या बीती उसी को पता है। मेरे प्यारों, रातों को उसकी नींद खराब हो गई होगी, वो खलक से निवाला नहीं नीचे जाता होगा। क्यों? क्योंकि बाप को वो छोड़कर चला गया। वो बाप जिसका दिल अपने बच्चों में था, वो बेटे ने उसको छोड़ दिया। आदम ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के विरोध चला गया, परमेश्वर से दूर चला गया, वो प्रेम की संगति को छोड़कर निकल गया, पाप और गुलामी में फंसता चला गया, बुराई में फंसता चला गया। वो जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही करता चला गया, अपने लिए पत्तों के कपड़े बना लिए, परमेश्वर के विरोध चाल चलन करने लगा। हर एक विचार अब परमेश्वर के विरोध था, हर एक एक्शन अब परमेश्वर के विरोध था। जीवन में कोई भलाई नहीं बची थी, अपने लिए डुप्लीकेट चीजों को खरीदे रहा था और परमेश्वर के विरोध होकर ही व्यक्ति चला गया। वो उड़ाऊ पुत्र भी अपने सुख विलास में सारे पैसे को गवा बैठा। एक दिन हालात ऐसे हो गई कि बाइबल कहती कि वो सुअरों के साथ संगति करने लग गया, सुअरों का भोजन खाने लग गया। थिंक अबाउट इट, बाप के दिल को कैसा लगता होगा। थिंक अबाउट इट, वो जो एक रॉयल जीवन जीने के लिए बनाया हुआ व्यक्ति था, वो आज इतने बदतर हालत में ऐसी जिंदगी जी रहा। मैं नहीं जानता आज मैं किसके जीवन की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे जीवन को जीने के लिए नहीं बनाए गए थे। आप पाप में जीवन को जीने के लिए नहीं बचाए गए थे। आप दुष्ट आत्मा के कब्जे में रहने के लिए नहीं बचाए गए थे। आप श्रापों में पड़े रहने के लिए नहीं बनाए गए थे। जिस दिन सृजनहार आपको बना रहा था, जब वो मैनकाइंड को बना रहा था, जब वो मनुष्य को बना रहा था, अपने संगति के लिए, अपनी महिमा के लिए, राज्य करने के लिए, डोमिनियन करने के लिए, अधिकार रखने के लिए बना रहा था। इसलिए नहीं कि उसकी सृष्टि गुलाम बन जाए, लेकिन हालात ऐसे हो गए, जब हमने कॉम्प्रोमाइज किया, जब हमने पाप के साथ समझौता किया, जब हमने बाप को छोड़ दिया, वो अधिकार हमसे छीन लिया गया। शैतान धूर्त था, इसने इंसान को फंसाया और उसको पाप में फंसा कर लेकर चला गया। ऐसे समय में मुझे वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद आती है। जब वो सुअर की संगति कर रहा था, उसे अपने बाप का घर याद आ रहा था। And he decided to go back to his father's house. और जाकर वहां पे नौकर बनने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो सोचता था नौकर भी अच्छे रहते। Then the Bible says, एक दिन वो लौट कर अपने घर आने के लिए निकला, गंदे कपड़े, सुअरों की संगति में वही दुर्गंध उसके शरीर में आती होगी, बुरी हालत, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति गंदे मैले कुचले कपड़ों में घर की ओर लौटता आ रहा। और जब यीशु मसीह ये दाखला बता रहे तो यीशु कहता, दूर से बाप देख रहा था और दूर से उसने अपने गंदे बच्चे को देखा। उसने देखा बच्चे की हालत बर्बाद थी, गंदी थी। तब कोई नौकर को नहीं भेजा जाकर आओ, वो खुद दौड़ कर चला आया और उसको अपने सीने से लगा दिया, उसको आकर सीने से लगाया। वो बेटे की गंदे कपड़े बाप को उसे सीने से लगाने से रोक नहीं पाए, वो बेटे के गंदे हालत बाप को अपने प्यार का इजहार करने से रोक नहीं पाए, वो उसमें की दुर्गंध बाप को अपना मुंह से दूर करने के लिए नहीं, परंतु बाप दया में अपने बेटे की ओर मुंह कर उससे अपने करीब लेकर आया। आई बिगिन टू वंडर माय फ्रेंड, मैं सोचता हूं कि ऐसे दुर्गंध में, ऐसे गंदे हालत में वो बाप ने अपने बच्चे को फिर से अपनाया, अपने साथ घर लेकर आया, अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे साफ करो, इसे नए वस्त्र पहनाओ, इसको नई अंगूठी दो, इसको नए जूते दो और आज शाम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो। एंड देन द फादर सेड, मेरा बेटा जो मर गया था वो फिर जीवित हो उठा है। Isn't it incredible? बाप ने उससे कुछ पूछा भी नहीं, बाप ने उसका कोई हिसाब नहीं लिया, बाप उससे कुछ मांगा नहीं, बाप ने उससे कुछ बोला नहीं। ओ, ये हमारे सृजनहार के प्यार को दर्शाता है। बट व्हेन आई थिंक अबाउट दिस स्टोरी, बाइबल कहती है बाप उस पुत्र को देखकर दौड़ गया। जब बाप दौड़ गया, आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार किसी ने परमेश्वर को भागता हुआ देखा। जब सृष्टि का समय था, उस समय पहली बार परमेश्वर को सिंहासन से उठकर अपने घुटने पर झुककर मट्टी में कुछ करते हुए किसी ने देखा था। जब बनाने की बारी थी, जब बचाने की बारी थी, पहली बार भागता हुआ बाप को स्वर्ग ने देखा। उससे पहले कभी बाप को भागने की जरूरत नहीं पड़ी। ओ, कोई ताकत उसे भगा नहीं सकती। आपकी और मेरी मोहब्बत के लिए वो सिंहासन छोड़कर भागता हुआ हमारे पास आ गया।
माय फ्रेंड, वो बाप अपने बेटे को सीने से लगाकर उसके गंदे हालत में वो जैसा था वैसा ही उससे रिसीव करके लेके आया. यू नो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड इज इट एक्सेप्ट्स अस द वे वी आर. हम जैसे वैसे हमको ग्रहण कर लेता, हमें अपने सीने से लगा लेता. ओ, हमारी कितनी भी पाप की दुर्गंध क्यों ना हो, वो उसे दूर नहीं करती हमसे, वो हमें सीने से लगाता. लेकिन उसका प्यार इतना महान है कि वो हमें पापी रहने नहीं देता, वो हमें गंदा रहने नहीं देता, वो हमें दुर्गंध में रहने नहीं देता, वो हमें श्रापों में रहने नहीं देता. हमें धोकर शुद्ध करता, पवित्र करता और अपने लिए फिर से उपयोगी पात्र बनाता. फिर एक बार खोया हुआ रुतबा लौटा देता, खोया हुआ अधिकार लौटा देता, खोया हुआ स्थान, वो रेप्यूटेशन फिर से लौटा देता. ओ, गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरिंग आवर लाइव्स. उत्पत्ति की पहला अध्याय इस बात की गवाही है कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है. उड़ाऊ पुत्र की कहानी इस बात की गवाही है कि परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है. उसी दाखलों के सिलसिले में यीशु मसीह ने एक और पैराबल कहा. यीशु मसीह ने कहा, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ थी, जिसमें से एक रात 99 लौट आई, एक नहीं आई. ओ, थिंक अबाउट दिस शेपर्ड. दिन भर चरवाहा अपने भेड़ों को लेकर गया, दिन भर का थका मांदा घर आया, हर एक को नाम बनाम गिना और देखा 99. फिर गिनना चालू किया, एक से गिनते 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 आया 99. अगेन काउंटिंग 99. जब हर बार गिन रहा 99, दिल की धड़कनें बढ़ गई होगी. वाह, माय वन चाइल्ड इज मिसिंग, माय वन शिप इज मिसिंग. ओह, दैट गॉड इज अ पर्सनल गॉड. मेरे प्यारो, आप लोगों के लिए भीड़ होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए आप भीड़ नहीं. परमेश्वर के लिए आप एक व्यक्ति हो, एक इंडिविजुअल हो. यू आर हिज वर्ल्ड, यू आर हिज वर्ल्ड. हो सकता है किसी के लिए You are nobody, but for him, you are his world. वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे उतर आया, वो एक को ढूंढता हुआ. मैं आपको बताऊं, यदि एक अकेला व्यक्ति भी होता, यदि मैं अकेला पापी इस संसार में होता, तो मुझे बचाने के लिए भी मेरा यीशु स्वर्ग से नीचे उतर आता. दिस इज द ग्रेट लव स्टोरी. क्रिसमस की कहानी एक सबसे अलौकिक दीवाने के प्रेम की कहानी है कि हमारे प्रेम के खातिर वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे हमें ढूंढने के लिए उतर आया. इसलिए तो वो कहता है लूका 19:10 में, आई हैव कम टू सीक एंड सेव दैट इज लॉस्ट. मेरे प्यारो, यदि आज संसार के चकाचौंध ने आपको अंधा कर दिया और आप भटक गए हो, यदि पाप ने आपको बर्बाद कर दिया और आप फंस चुके हो, यदि बुराई की गंदी आदतों ने आपको जंजीरों के रूप में जकड़ लिया है, आप अपने आप से पिता के पास वापस नहीं आ सकते, तो चिंता मत कर. तू जहां है वहीं पे पुकार, यीशु तेरे पास आएगा. क्योंकि यीशु आया ही खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने. लेट मी टेल यू वन थिंग. ओ, मनुष्य यदि कोई चीज ढूंढना चाहे तो हो सकता है कि वो उसे ना पाए, लेकिन अगर परमेश्वर कोई चीज ढूंढना चाहे तो इम्पॉसिबल है कि वो उसे ना पाने पाए. द बाइबल डिक्लेयर्स, वो खोए हुए को ढूंढने आया. गॉड फाउंड अस, गॉड फाउंड अस. इज इट इनक्रेडिबल टू नो दैट द क्रिएटर फाउंड मी. ओ, जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, दैट वॉज द डे व्हेन गॉड फाउंड मी. मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप खोए हुए हो, आज परमेश्वर आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है. ही हैज फाउंड यू टुडे. वो आपको पा लेना चाहता है. यीशु मसीह ने एक और पैराबल बताया. एक व्यक्ति जिसको खेत में छिपा हुआ धन मिला, बड़े आनंद के कारण जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और आकर वो प्रॉपर्टी खरीद ली. क्यों? बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी. उसे छिपा हुआ धन मिल गया. यू नो, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. वो खुद की कहानी बता रहा था. ये कह रहा था, मुझे जब तू मिल गया, इस संसार में पड़ा हुआ मिल गया, पाप में पड़ा हुआ मिला, इस बुराई में पड़ा हुआ मिला, श्राप में पड़ा हुआ मिला, गंदगी में पड़ा हुआ मिला. ओ, वो उड़ाऊ पुत्र जैसा जब गंदा लौट आ रहा था वैसा मिला. बड़े आनंद से मैंने अपना सब कुछ बेच के, स्वर्ग खाली करके तुझे अपना लिया, तुझे खरीद लिया. और अपने लहू से यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया. बाइबल कहती है वो खोए वो को ढूंढने और उनको बचाने आया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है कि चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने भी बुराई में फंसा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी गंदे आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, यू नो व्हाट, वो परमेश्वर के प्यार को ऑल्टर नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू वन थिंग, लव ऑफ गॉड इज नॉट कंडीशनल.
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपके और मेरे परमेश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, और क्योंकि उसका प्यार हमारे लिए अनकंडीशनल है, क्या आपको पता हम अपने कार्यों से परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बढ़ा नहीं सकते, और अपने बुरे कार्यों से परमेश्वर का प्यार हमारे लिए घटा नहीं सकते। You know, the love of God is constant. He loves us. He loves us. He loves you. He loves me. वो उसका प्यार दीवानों की तरह है। मालूम बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से ऐसा प्यार किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। क्यों? क्योंकि इस जगत में हम रहते हैं। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे लिए जन्मा, वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे हमारे लिए जन्मा। बाइबल उसके जन्म के समय में ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। Think about it. ओ, पापों से छुड़ाने की ताकत कानून में नहीं थी, पापों से छुड़ाने की ताकत रिलीजन में नहीं थी, पापों से छुड़ाने की ताकत सोसाइटी में नहीं थी, पापों से छुड़ाने की ताकत किसी मॉरल में नहीं थी। पापों से छुड़ाने की ताकत एक व्यक्ति में है जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए पौलुस ये कहता है पहला तिमोथी पहले अध्याय के 15 वचन में कि ये बात हर प्रकार से सत्य और मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया। Think about it. यीशु मसीह पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया। इसीलिए उस दिन यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू उससे जीवन मांगती और वो तुझे जीवन देता। मेरे प्यारो, ये क्रिसमस के इस सेलिब्रेशन में ये मत भूल जाओ, जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। ये क्रिसमस यीशु मसीह के लिए है। यीशु मसीह की वजह से हम ये जश्न मना रहे हैं। लेकिन यदि ये यीशु मसीह के साथ मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप नहीं हुआ तो वो कोई काम का नहीं। कैसे यीशु के साथ व्यक्तिगत रिलेशनशिप होगा? सिंपल, बाय अलाउइंग जीसस टू डू हिज वर्क इन माय लाइफ। सिंपल, ये समझने के द्वारा यीशु मुझसे प्यार करता है। मेरे पापों ने मुझे परमेश्वर से दूर किया, लेकिन परमेश्वर के प्यार ने यीशु को मेरे लिए भेज दिया और आज यीशु मेरे लिए आया, मुझे सीने से लगाकर दंड के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए ले जाता है। इसलिए यीशु कहता है, चोर चोरी करने आता, घात करने आता, हत्या करने आता, पर मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लिसन, यीशु मसीह के साथ बहुतायत के जीवन में यीशु आपको बुला रहा, वो भरपूर जीवन में यीशु आपको बुला रहा, वो शांति के जीवन में यीशु आपको बुला रहा, वो पापों की क्षमा के जीवन में यीशु आपको बुला रहा, वो पिता के साथ एक महिमा के जीवन के लिए यीशु आपको बुला रहा। हो सकता है पाप के कारण आपका सर झुका हुआ है, लेकिन यीशु खोयों को ढूंढने और उन्हें बचाने आया। एक रोज एक पापिनी स्त्री को यीशु के पास लाया गया। ओ, तब बाइबल कहती है कि उसको यीशु के पास लाया और बोला, ऐसी स्त्री के विषय में लिखा है व्यवस्था में, इसे पथरवा करके मार डाला जाए, तू क्या कहता? ओ, यीशु झुक कर नीचे लिखने लगे और ये कहने लगे, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारो। धीरे धीरे सब पत्थर वहीं पे छोड़कर लोग वापस चले गए। तब यीशु इस पापिनी स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार में पकड़ाई गई थी और उससे कहा, बेटी, तुझ पर दोष लगाने वाले कहाँ है? और वो कहती, कोई भी नहीं, सब चला गया। तब यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। माय फ्रेंड, यीशु एक पापी को देखकर कहता, बेटा, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। एक बेटी को देखकर कहता, बेटी, मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। ओ, हमारा विवेक हमको दोषी ठहराता है, हमारी यादें हमको दोषी ठहराते हैं, शैतान हमको दोषी ठहराता है। ओ, शैतान है जो भाइयों को दोष लगाने वाला है। यीशु दोष लगाने नहीं, वो हमको बचाने आया है। आज आप जब इस संदेश को सुन रहे हैं, ये जानो, यीशु कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, दोबारा पाप मत कर। वो प्रभु यीशु मसीह बल देता है, सामर्थ देता है एक जयवंत जीवन जीने के लिए। क्या इस वरदान को आप अपने जीवन में स्वीकार करोगे? दिस गिफ्ट हैव टू बी रिसीव्ड। ये गिफ्ट को कैसे रिसीव करते? विश्वास से यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये आपको अनंत जीवन देगा, ये आपको विजयी जीवन देगा, ये आपके पापों को क्षमा करेगा, ये आपके गुलामी में से आपको छुड़ाएगा और एक स्वतंत्र जीवन देगा। ये आपको बहुतायत का जीवन देगा, आपको एक तंदुरुस्त जीवन देगा। ये प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के आंसुओं को पोंछने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट परमेश्वर का है।
इस क्रिसमस इस गिफ्ट को रिसीव करें। आइए मिलकर मेरे साथ ये प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज मैंने आपके वचन को सुना है, आपका वचन पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने आए हो। ओ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, मैं खोया हुआ हूं प्रभु, मुझ पर दया करे, मुझे ढूंढ लीजिए, मेरे जीवन में परमेश्वर आप आइए। आज से प्रभु मेरे जीवन का आप प्रभु हो जाइए, और जब तक जीऊं आपकी महिमा के लिए मैं जीवन व्यतीत करूं, ऐसा अनुग्रह मुझे दीजिए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता, आमेन। You know, it's so wonderful that when we pray, we know one thing, कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। सोच के देखो, जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया, वो गंदा, मैला, बदबूदार, उसको अगर बाप ने गले लगा लिया, तो जो व्यक्ति प्रार्थना करके प्रभु के पास आ रहा है, क्या बाप उसको त्याग देगा? क्या वो उसको उसके पुराने दिन याद दिलाएगा? क्या वो उसको उसकी बुराई को याद दिलाएगा? God is ready to forgive. God is ready to make a new beginning. आज ही से एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर तैयार है। You know, one of the beautiful thing about the Bible is, परमेश्वर का वचन यूहन्ना पर प्रकट हुआ, और यूहन्ना ने पहले यूहन्ना इसके 3 अध्याय के 8वें वचन में कहा, इस कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। Think with me, my friend. यीशु मसीह इसीलिए आपके जीवन में आया कि आपके जीवन में से शैतान के हर एक कामों को नाश कर दे। Everything that enemy has done in your life, आज तक जो कुछ शैतान ने किया, वो सब कुछ को यीशु मसीह वो उल्टा कर देगा। यीशु मसीह उन तमाम बातों को पूरी रीति से बर्बाद कर देगा। शैतान के हर एक कामों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। हो सकता है जनरेशन से कर्स आपके जीवन में होगा, लेकिन आज यीशु मसीह का एक वरदान उस जनरेशनल कर्स से आपको छुड़ा लेगा। हो सकता है सालों से आप बीमारी में हो, लेकिन यीशु मसीह का एक स्पर्श आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हो सकता है रिश्तों में दरार सालों से पड़ी है, पर लेट मी टेल यू वन थिंग, जब यीशु अंदर आएगा ना, दुश्मनी मिट जाएगी, मोहब्बत जीवन में आएगी और जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेट मी टेल यू, दोज हु टॉलरेट यू टुडे विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग यू टुमारो बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के प्रेम के कारण लोग तुम्हें सेलिब्रेट करने लगेंगे। तो आज अपने चेहरे पे से उदासी को दूर करो। इस क्रिसमस के महोत्सव को मनाते समय ये जानो, यीशु के साथ आपका रिश्ता औरों के जीवन के लिए आशीष का कारण है। Let life never be the same again. You know, let me tell you, my friend, before I close, मैं कभी-कभी सोचता हूँ, जब मैं क्रिसमस की स्टोरी को पढ़ता हूँ बाइबल में, तो मैं वो इनकीपर के बारे में सोचता हूँ, वो सराय का मालिक जिसके घर पे यूसुफ और मरियम गए थे। मरियम का वो समय आ रहा था कि जब वो बच्चे को जन्म दे। ऐसे समय में जब वो लेबर पेन के करीब थी, वो यूसुफ शायद दरवाजा खटखटा रहा होगा। वो सराय मालिक ने दरवाजा खोला और सराय मालिक को बोला गया, मेरी वाइफ डिलीवरी के टाइम नजदीक आ गया, कैन यू गिव अस अ रूम। ऐसे समय में सराय का मालिक ये कहता, सॉरी ऑक्यूपेंसी फुल है, आई कैन नॉट, एंड शट्स डाउन द डोर। या आखिरी में ज्यादा जिद होने के बाद उसने ये कहा, वो एक मेरे पास गाय का शरनी है, दैट्स द ओनली सूटेबल प्लेस राइट नाउ, बाकी सब तरफ इंपॉर्टेंट गेस्ट हो गए, आई कैन नॉट ऑफेंड एनीबॉडी। सोच के देखो, ये सराय के मालिक को पता नहीं था जो पैदा होने वाला है वो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। माय फ्रेंड, सो मेनी पीपल डू नॉट नो अबाउट जीसस, और वो ये सराय के मालिक के समान है जो यीशु के करीब होने के बाद भी यीशु की अहमियत को नहीं जानते। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, उस दिन अगर वो सराय के मालिक को पता होता कि यीशु कौन है, तो वो कहता, मैं बाहर रहूंगा लेकिन यीशु के लिए वो घर को देता हूं। माय फ्रेंड, कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो यीशु को नहीं जानते, वे सिर्फ फेस्टिवल मना रहे हैं, वे सिर्फ डेकोरेशन करके बैठे हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू, पिक अप योर फोन, टेल समबडी अबाउट द लव ऑफ क्राइस्ट। अपनी गवाही को किसी को बांटे, ये सीजन वेस्ट न जाने जाए, किसी के लिए प्रार्थना करें। ओ हो सकता है इतना तो जरूर कर सकते कि हमारे अपर चर्च के इस संदेश को, इसको आप अपने दोस्तों को बांटे। लेट मी टेल यू, आप जितने लोगों तक सुसमाचार पहुंचाओगे उतनों के जीवन बदल जाएंगे, बिकॉज यीशु खोए हुए को ढूंढने आया, अद्भुत जीवन देने आया, व्यवस्था को पूरा करने आया और शैतान के कामों को नाश करने आया। माय फ्रेंड,
God has come down to rescue and restore our lives. आज ये क्रिसमस का संदेश आप सबको आशीष दे और आपका जीवन पहले जैसा कभी ना हो. May God bless you all. Have a blessed week. Thank you very much for tuning today. हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई. अगर आप पास्टर मोसेस डेविड या पास्टर जोशुआ डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पे पा सकते हैं. आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि अपर रूम इंडिया ने वॉकिंग ऑन द वे नाम से एक टीवी सीरीज लॉन्च की है जो हर थर्सडे और सैटरडे दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पर आता है. अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी विषय पे काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है. If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye.